Good morning, children. Today I'm here with you with the chapter Glimpses of India from Class 10's First Flight book. Its second part is Kurg, written by Lokesh Abrol. So, the lesson gives a beautiful insight of smallest district of Karnataka and its people. This place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. The people of Kurg are known to be one of the bravest. Coffee is the main crop grown in this region. A variety of animals can be found here, while the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands, and Tibetan settlements. So it's really a beautiful place in India. Whenever you get a chance, you can visit here, and by lesson, we comes to know different types of traditions and what type of animals found here, what are the customs here, and their traditional dress, all we learn from this chapter. So let's start reading further. First of all, overview of Kurg. Kurg or Kodagu is the district within Karnataka state as a tourist destination. So Kurg का दूसरा नाम है Kodagu. We can also say Kodagu. Kurg is famous for कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग है वो किसके लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन के लिए. रेन फॉरेस्ट है क्योंकि वहां पे हमेशा क्या है, बारिश रहता है और मॉनसून सीजन में हैवी रेनफॉल होता है. एंड स्पाइसेस ये मीन्स मसाले जो हम अपने खाने में, अपने फूड में जो हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, ऑल आर प्रेजेंट हियर. So the writer described the hill station of Kurg, located in the Western Ghat in the state of Karnataka. So the place is also famous for coffee plantation and spices. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore, land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So, this is famous for coffee plantation, spices, rainforest, and the Kurgiman overview of Kurg. Next. So, you can see the Kurg, the smallest district of Karnataka, is a home of evergreen forest, cover 30% of this district. And you can see in this map, मैसूर और मैंगलोर के बीच में यहाँ पे है कुर्ग प्रेजेंट है, between Mysore and Bangalore. Now it's Bangalore. So the season of joy commences from September and continue till March. Now अगर आपको कभी जाना हो यहाँ पे, if you get a chance to visit, you can visit from September and continue till March. वहाँ का वेदर है जो आपके लिए suitable है जाने के लिए, वो है सितंबर से till March तक. Kurg people are possibly of Greek or Arabic descent. So कुर्ग के जो पीपल हैं, दे आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, मीन्स उनके वंशज हैं माने जाते हैं, या उनका जो अपीयरेंस है, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग है, उससे हम कह सकते हैं दे आर द डिसेंट्स ऑफ ग्रीक और अरेबिक पीपल. एंड also one story is also goes a part of Alexander army moved south along and settled here and married amongst the local. ये एक अनदर स्टोरी है जिससे पता चलता है कि वो अलेक्जेंडर के भी डिसेंट हो सकते हैं. सो वी कम हमने यहाँ से क्या क्या देखा कि कुर्ग है वो बैंगलोर और मैसूर के बीच में है, प्रेजेंट है, और वहाँ पे जो वेदर सूटेबल है, व्हेन वी कैन ट्रैवल टू कुर्ग इज सितंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च. और डिसेंट कुर्ग पीपल है वो डिसेंट किसके माने जाते हैं? ग्रीक और अरेबिक. और ऑल्सो स्टोरी गोज दैट इलेक्शन आर्मी है वो यहाँ पे सेटल हो गई एंड दे मैरिड टू अ लोकल्स ऑफ कुर्ग. नाउ थ्योरी ऑफ अरब. एक और थ्योरी है कि वो अरब से है, वो किस तरह से क्यों माना जाता है कि वो अरब के जो के
जो पीपल्स हैं उनके जैसे वो लगते हैं, उनके डिसेंट माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by Kodavus known as कुपिया। तो उनके जो ड्रेस है उनको क्या कहा जाता है? कुपिया। यू कैन सी इन दिस इमेज ब्लैक ड्रेस विथ वेस्ट बेल्ट। तो सेम इस टाइप का ड्रेस है अरब अरब के जो लोग हैं वो पहनते हैं, दैट इज ऑफ वाइट कलर विद अ कैप। तो उनके साथ में उनका जो ड्रेस है वो सिमिलैरिटी रखता है, रिजेंबल करता है कुछ हद तक अरेबिक लोगों के की ड्रेस से। तो दैट्स व्हाई ये थ्योरी है वो सेट होती है कि हाँ हम कह सकते हैं दे वर द डिसेंट्स ऑफ अरब। So the dress is called kupiya, black coat with embroidered waist belt. It resembles the kufiya worn by the Arabs. अरब की जो ड्रेस है उसको क्या कहते हैं? कुफिया, और ये क्या कहते हैं? कुपिया। So there is a difference in the name. Please look at this. And the Kurds. So this is the theory that why the Kurd people are called as the descent of Arabs. Homes have now Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. हॉस्पिटैलिटी का यहाँ पे मीनिंग है मेहमान नवाजी करना। कुर्ग के जो पीपल हैं उनको मेहमान नवाजी का बहुत शौक है और वो क्या करते हैं? वेलर। वेलर क्या होता है? स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। दे वर वेरी इंटरेस्टेड टू टेल द टेल्स अबाउट द फादर्स एंड सन ऑफ ब्रेवरी। वो बहादुरी के किस्से सुनाने में बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है अपने फादर्स और उनके सन्स के बारे में। कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। डेकोरेटेड का मीनिंग है यहाँ पे हैविंग रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो कुर्ग रेजिमेंट है वो एक फेमस प्लेस रखती है इंडियन आर्मी में एज दे आर द वॉरियर्स। और फर्स्ट चीफ इन इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। यू कैन सी द इमेज ऑफ जनरल करियप्पा। ही इज द फर्स्ट इन इंडियन आर्मी एज अ जनरल। ही इज ऑल्सो फ्रॉम कुर्ग। Kodavus are the only people in Indian permitted to carry firearms without license. So it's the main fact you can see that they are permitted to carry firearms without license. Now next है रिवर कावेरी। कुर्ग के ट्रेडिशन के बारे में, कुर्ग के लोगों के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फूना, सीनिक ब्यूटी के बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर कावेरी। रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी है वो कुर्ग के जो हिल्स है, हिली एरिया है और फॉरेस्ट है, वहां से उसको पानी मिलता है। Second, Mahasir. Mahasir, a large freshwater fish we can found here in abundant. आपको यहाँ पे महासीर फिश है वो देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा मात्रा में। किंगफिशर डाइव हेयर टू कैच। यहाँ पे आपको किंगफिशर बर्ड भी देखने को मिलेगी। यू कैन सी द इमेज ऑफ किंगफिशर हेयर। यू कैन ऑल्सो फाउंड स्क्विरल्स, लंगूर्स ड्रॉप पार्शियल ईटन फ्रूट ऑफ एंजॉयिंग रिपल इफेक्ट इन क्लियर वाटर। और लंगूर्स है वो क्या है? अपना आधा खाया हुआ फल क्या है? पानी में गिरा देते हैं टू सी द रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट का यहाँ पे मीनिंग है जो पानी में एक तरह से सर्कुलिक मोशन होता है। तो लंगूर है उसको अपना आधा कटा हुआ फल उसके अंदर डाल के वाटर में वो इफेक्ट को एंजॉय करते हैं। यू कैन सी द रिपल इफेक्ट इन दिस इमेज। एक तरह से सर्कुलेट मोशन होता है वाटर में जब हम उसके अंदर कोई चीज गिरा देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब स्पीसीज हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। महासीर, किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये सब एक सीनिक ब्यूटी के अंदर ऐड होकर उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। वी वांट नाउ कुर्ग की लाइफ एनर्जेटिक है और अगर कोई यहाँ पे आकर रिलैक्स करना चाहेगा तो उसके अंदर एनर्जेटिक फीलिंग आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी एडवेंचरस प्लेसेस है, एडवेंचरस स्पॉट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। रिवर राफ्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर राफ्टिंग, यू कैन सी इन दिस इमेज
River rafting is traveling in a river in a raft. Raft is a floating platform made by tying planks together. Second, canoeing. Canoeing is a traveling in a river in a canoe, a large narrow boat. You can see the large narrow boat in this image. Rappelling. Rappelling is a going down a cliff by sliding down a rope. This is a rappelling. And rock climbing, पहाड़ों पे चढ़ना. Mountain biking means mountains पे bike चलाना. So these are the adventurous sport you can see in Kurk and can enjoy here. Then आपको यहाँ पे काम the adventurous sport these are the adventurous sport you can see in Kurk. Beside this, birds, bee, squirrels, butterflies, macaques. Macaques है वो एक तरह से बंदर की ही प्रजाति है. Malabar squirrels, langurs, slender loris, ये सभी आपको varieties of animals आपको कुर्ग के जंगलों में देखने को मिलेंगे. Now गिरी हिल्स के बारे में भी बताया है. जब आप उनके हिल्स के ऊपर क्लाइंब करेंगे तो वहां पे आपको मिस्टी मीन्स धुंधला सा पेनोरमिक व्यू दिखाई देगा एंटायर लैंडस्केप का. पेनोरमिक व्यू का यहाँ पे है व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड. तो आपको धुंधला सा पेनोरमिक व्यू दिखाई देगा लैंड का. यू कैन सी द इमेज ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स. देन निसर्ग धाम. अगर आप रोप वे का जो ये रास्ता है, पुल है, इस रास्ते को अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इसको ट्रैवल करते हुए आगे आपको मिलेगा 64 एकड़ ऑफ आइलैंड. आपको एक आइलैंड पे लेके जाएगा ये रास्ता जो निसर्ग धाम की तरफ जाता है. देन बायलाकुप्पे. कुर्ग में हमें बायलाकुप्पे जो जगह है वहां पे आपको कुर्ग में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का सेटलमेंट मिलेगा. यू कैन सी द इमेज ऑफ बायलाकुप्पे जो प्लेस है उसके जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है उसके टेम्पल्स और वहां पे आपको मॉन्क्स भी मीन्स मॉन्क्स या मीन्स प्रीस्ट भी बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो रेड ऑकर ऑकर या मीन्स येलो सॉरी ऑरेंज जो रेड ऑरेंज और येलो रोब्स में आपको दिखाई देंगे. सो अगर आपको कुर्ग में विजिट करना है तो इन सभी प्लेसेस में आपको विजिट करना है, इसको डिस्कवर करना है. और विजिटर के लिए ये जो प्लेस है ये किसी सोल और अगर कोई विजिटर सोल और हार्ट ऑफ इंडिया को देखना चाहता है तो वो सिर्फ आपको मिलेगा कुर्ग. सो कुर्ग इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट एंड whenever you get इसमें हमने कुर्ग के डेस्टिनेशन के बारे में पढ़ा, उनके फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ा, पीपल्स का जो अटायर है उसके बारे में डिस्कस किया और वो कि वहाँ के जो लोग हैं दे आर द वॉरियर्स और इंडियन आर्मी में उनका क्या स्पेशल प्लेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. सो दिस इज द चैप्टर ऑल अबाउट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड you enjoy the place and its scenic beauty, and thank you and have a good day.